and honor to welcome. This meeting is being recorded. It is my privilege and honor to welcome you all to today's academic session organized on the important theme Domestic Violence and Legal Rights, Protection and Support. On behalf of Nux Foundation, I, Jaskirat Khera, extend my warm greetings and heartfelt welcome to our distinguished speaker, organizers, and all the participants who have joined us for this meaningful discussion. Issues concerning domestic violence are not merely private matters, but involve significant questions of human rights, dignity, equality, and access to justice. Legal awareness plays a crucial role in empowering individuals to understand their rights, seek protection, and access available support mechanisms. Today's session aims to create awareness regarding the legal framework governing domestic violence, the rights and remedies available to victims, and the role of law in addressing and preventing such forms of violence. To enlighten us on this important subject, we are honored to have with us Dr. Navna Singh. She holds an LLM from Nirma University, Ahmedabad, and a PhD in law from Modi Institute of Technology and Sciences, Lakshmangarh, Rajasthan. She qualified the UGC NET in law in 2015. With over 9 years of teaching and research experience, she has made significant contribution to legal education and academic research. Prior to joining Tantia University, she served as an assistant professor at Modi University of Science and Technology, Lakshmangarh, Rajasthan. Dr. Nagma Singh is an associate professor in the Faculty of Law at Tantia University, Shri Ganganagar, Rajasthan. Her expertise in family law and human rights make her highly suited to address today's theme on domestic violence and the legal protections available against it. We are privileged to have you with us, ma'am. Without further delay, I would like to invite Dr. Navna Singh ma'am to kindly deliver her insightful session on domestic violence, legal rights, protection and support. Over to you, ma'am. Thank you so much. Before starting the session, I would like to extend my heartfelt thanks to the Nux Foundation and the entire team for providing me this platform to speak on this relevant topic, domestic violence, legal rights, protection and support. The word domestic violence, ये एक ऐसा शब्द है जो खुद ही हमें बहुत सारी फीलिंग्स लेके आता है, जिसमें हम सिंपैथी लेके चलते हैं, जिसमें हम राइट्स की बात करते हैं, जिसमें हम रेमेडीज सोचना शुरू करते हैं। तो इस पूरे सेशन को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जब हमारे दिमाग में आता है शब्द डोमेस्टिक वायलेंस, तो साथ ही साथ आता है लॉ। तो हमारे दिमाग में कौन सा लॉ क्लिक होता है कि आज ये सेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, बेरेट की लैंग्वेज में नहीं, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें हेल्प करने के लिए या फिर जो विक्टिम्स हैं उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए अवेलेबल है आज के टाइम पे हमारे पास। तो जब मैंने बात की कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में और क्या आता है, कौन सा एक्ट आता है, कौन सा लॉ आता है, तो हम सोचते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट कमीशन है, विमेन कमीशन है हमारे पास, तो कोई लॉ भी है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले आईपीसी था, अब बीएनएस है। कोई सेक्शन है जो हमने कभी सुना हुआ हो जी, 498A, जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होगा। आईपीसी का किसके बारे में बात करता है? क्रुएलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम पे वो क्या है? सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस। अब बात आती है कि अगर हमारे पास बीएनएस है तो क्या वो सफिशिएंट है, और वो बीएनएस क्या कर रहा है? सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस की जब मैं बात कर रही हूं, जो गवर्न कर रहा है क्रुएलिटी को, जो दोनों टाइप की क्रुएलिटी को कवर कर रहा है, मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी कवर हो रही है सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जब किसके अगेंस्ट है ये? हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट। प्रोटेक्शन किसको दी गई है? विमेन को। अगर एक मैरिड विमेन को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो क्रुएलिटी फेस कर रही है फिजिकली या मेंटली, तो वो सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस की हेल्प ले सकती है और उनको पनिशमेंट मिल सकती है। अब बात आती है कि जब पनिशमेंट मिल गई, क्या ये पनिशमेंट एक सफिशिएंट तरीका है उस क्रुएलिटी से बाहर निकलने का?
नहीं, बहुत सी सिचुएशन में ऐसा टाइम है जहां पे हमें पनिशमेंट नहीं चाहिए, पनिशमेंट से पहले मुझे रेमेडी चाहिए। ओके, अब मैं रेमेडी के लिए क्या देख सकती हूँ? तब बात आती है किसकी? प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये सब कहने का मतलब था, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसका पर्पस क्या है? हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, नंबर वन। मेजर मोटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट ये है, जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए, टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21, इक्वेलिटी आर्टिकल 14 15, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर दिए, उन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है जी, ये हमने मेजर ऑब्जेक्टिव समझ लिया। इसी के साथ साथ क्रिमिनल लॉ तो है, लेकिन जो वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है उसको रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए जो ऑप्शंस दे रहा है, वो कौन दे रहा है? डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना तो था ही, साथ के साथ जो वुमेन उस प्रॉब्लम में है, डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही है, उसे रेमेडीज प्रोवाइड करना भी है। लेकिन वो क्या क्या रेमेडीज हैं, वो हम इस पूरे सेशन के थ्रू जानेंगे। तो इसी के साथ मैं एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना चाहूंगी। आई थिंक कुछ कुछ इशू है इसमें, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। मैम इफ नीडेड हमारी टीम जो है प्रेजेंट कर देगी। ओके फाइन। whoever was presenting please go ahead again. मैम आप जस्ट इंस्ट्रक्ट करते रहना कि कहाँ चेंज जी करना है, जी, दैट्स ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो पूरे सेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क आज अवेलेबल है इस डोमेस्टिक वायलेंस को से निकलने के लिए। ठीक है जी, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या जुडिशरी ने कोई रोल प्ले किया है, कोई जजमेंट्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, जो हमारा डीवी एक्ट है, उसको और इलेबोरेट किया हो, एक्सटेंड किया हो, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जो हमारे आसपास है जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं। इस पूरे ये सेशन का जिस्ट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, जो क्लियरली मेंशन्ड है कहाँ पे? सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। मैं इसकी टेक्निकल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 3 ने डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। इसने एक ब्रॉडर वर्जन यूज किया जिसमें इसने हर तरीके की वायलेंस को कवर करने की कोशिश की है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है? किसी भी कोई भी एक्ट, ओमिशन या कंडक्ट जो हमारी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम को फिजिकली हार्म करे या हमें मेंटली हार्म करे, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। इसी के साथ साथ जो वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज है, इकोनॉमिक अब्यूज है, या डाउरी की अनलॉफुल डिमांड है, या कोई भी अनलॉफुल डिमांड है जो पूरी नहीं करनी चाहिए, उसमें किस में कवर हो रही है? डोमेस्टिक वायलेंस। इसी के साथ साथ कॉर्जन, कि या तो आपको किसी तरीके का नुकसान, थ्रेट, आपको किसी तरीके का नुकसान, या आपसे रिलेटेड किसी और इंसान को हम कोई थ्रेट करेंगे वरना आप हमारी ये डिमांड पूरी कर दो। किस में कवर हो रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस में।
So basically, domestic violence is not physical abuse only. Domestic violence is covering physical, sexual, verbal and emotional and economic abuse also. अब इसमें कुछ शब्द यूज हुए हैं स्टार्टिंग में, एक्ट, ओमिशन एंड कंडक्ट. कोई एक्टिविटी करना तो अब्यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, ओके, किसी ने कोई एक्टिविटी की, वो मेरे लिए फिजिकल अब्यूज है. किसी ने मुझे इंसल्ट किया, मेरी पूरी फैमिली के सामने मुझे इंसल्ट किया, या कुछ ऐसे टॉन्टिंग की जो मुझे हर्ट हुई, अब्यूज में आ रहा है जी, डोमेस्टिक वायलेंस है. लेकिन ओमिशन कैसे, कुछ ना करना कैसे हो सकता है कि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में कवर हो सकता है? हो सकता है. जो मेरे राइट्स थे, अगर मुझे वही एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा तो दैट इज ओमिशन. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बैंक का लॉकर था, उसकी मुझे चाबी नहीं दी जा रही, मुझे ओमिट किया जा रहा है, दैट इज इकोनॉमिक अब्यूज. तो इसी को हम डिटेल में देखेंगे आगे जाके कि ये इन सब में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं. इस पूरे स्लाइड का पर्पस क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल अब्यूज को कवर नहीं करता, उस एक वाइडर लेवल पे वो इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज सब चीज को कवर कर रहा है. और आज के टाइम पे देखूं तो वो डिजिटल अब्यूज को भी कवर कर रहा है. किसमें? वर्बल और इमोशनल अब्यूज में, साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज में. जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जी, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं जो हमारी फिजिकल अब्यूज है, फिजिकल वायलेंस है. उसमें हम देख सकते हैं स्लैपिंग, पंचिंग, किकिंग, जो नॉर्मल चीजें हम हमेशा से देखते हैं कि घरेलू मारपीट, ये सब चीजें किस में आ रही, जो हमें क्या देंगी, जो ऐसे घाव देंगी जो नजर आएंगी, जो इंजरीज देंगी, किस में आ रहा है? फिजिकल अब्यूज में आ रहा है. वहीं मैं बात करूं इमोशनल अब्यूज, ये वो चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन मुझे मेंटल लेवल पे टॉर्चर कर रही है. जैसे थ्रेट्स हैं कि हाँ, हम आपके भाई का बिजनेस बंद करवा देंगे, आपके भाई को मारेंगे, या आपके पेरेंट्स को ये कर देंगे, जो ऐसा डर पैदा करना, नहीं तो आप हमारी बात मानो, मुझे मेंटल लेवल पे ट्रॉमा दे रहे हैं, वो सब किस में आएंगे जी? इमोशनल अब्यूज में आएंगे. इसके साथ साथ ही कोई ऐसी टॉन्टिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है जो कंसीव नहीं कर पा रही, उसको उस पे इनफर्टिलिटी पे टॉन्टिंग की जा रही है, या वो मेल चाइल्ड को पैदा नहीं कर पा रही कि हाँ आपके बेटा नहीं हुआ, उसको लेके उसको सोसाइटी में, उसके घर में टॉन्ट किया जा रहा है, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब रह रही है, उसको सफोकेशन हो रही है. किस में आ रहा है? वो इमोशनल अब्यूज में आ रहा है. इसके साथ जो थर्ड फॉर्म मेंशन किया इस एक्ट में, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज. अब बात आती है, हमारे यहाँ पे मैरिटल रेप का कंसेप्ट नहीं है, मतलब मैरिटल रेप पनिशेबल नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा आपके कंसेंट के बिना एक वाइफ के साथ एक चीजें हो रही हैं, तो वो किस में जा सकती है? डीवी एक्ट में जा सकती है. या फिर मैं बात करूं कुछ ऐसी अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जो उसको उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट लग रही हैं, वो भी किस में कवर हो सकती हैं? सेक्सुअल वायलेंस में कवर हो सकती है. अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक अब्यूज, जिसमें हाँ जी क्या आता है, मैंने जैसे पहले आपको एग्जांपल दिया था, डिनाइंग एक्सेस टू मनी. आपका ही पैसा है, आपका राइट है, वो आपको यूज नहीं करने दिया जा रहा. आपके पास कोई ऑफर लेटर है, आप नौकरी करना चाह रहे हो, आपको नौकरी करने नहीं दी जा रही, आपकी सैलरी को कंट्रोल किया जा रहा है, आप जो नॉर्मल में रोटी कपड़ा मकान हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको नहीं दी जा रही, आपकी प्रॉपर्टी आपके बिहाफ पे कोई और डिस्पोज कर रहा है विदाउट योर परमिशन. ये सब किस में आ रहा है? इकोनॉमिक अब्यूज. अगर मेरे वर्क प्लेस पे आके मेरे घर वाला कोई भी ट्रबल क्रिएट कर रहा है ताकि मुझे वहां से निकाल दिया जाए, वो भी किस में आएगा? इकोनॉमिक अब्यूज में आएगा. इसी के साथ साथ आज के जमाने में जब मैं बात करूं, साइबर स्टॉकिंग, जो मोबाइल फोन, अगर मेरा हस्बैंड मेरा मोबाइल फोन मॉनिटर कर रहा है, उसने कोई ट्रैकर लगा रखा है, उसको पता चल रहा है कि मैं रोज कहाँ जाती हूँ, क्या कर रही हूँ, ये भी किस में आएगा? इमोशनल अब्यूज में आएगा, मेंटल अब्यूज में आएगा. सो पर्पस इज कि जो इस डीवी एक्ट ने डेफिनेशन दी वो इतनी ब्यूटीफुल दी कि उसने हर तरीके से वुमेन का पहलू समझा है कि किस किस तरीके से उसको प्रॉब्लम हो सकती है. तो फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, इकोनॉमिक अब्यूज, 4 तरीके के अब्यूज को इन्होंने कवर किया है. इन सब में से कोई भी एक एक्टिविटी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट का रीजन बन सकती है. ठीक है.
अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कुछ एग्जांपल्स के साथ, जिनका जवाब इस पूरे सेशन में हमें मिलेगा। जब मैंने बात की प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, तो एक सवाल है कि क्या ये प्रोटेक्शन सिर्फ वेमेन के लिए है? जो ये डोमेस्टिक वायलेंस थी कि ठीक है हमने देख ली फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, क्या ये सिर्फ वेमेन के लिए है? अगर ऐसा होता है कि एक हस्बैंड को उसकी वाइफ ने मारा, क्या वो इस एक्ट में जा सकता है? क्या वो अपनी वाइफ की अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस की? जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हूँ मतलब घरेलू हिंसा, ठीक है जी, तो क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी तक जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बातें सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि इन लॉज परेशान कर रहे हैं किसको? अपनी डॉटर इन लॉ को। व्हाट इफ पेरेंटल होम में ही एक लड़की परेशान हो रही है अपने फादर से, अपने अंकल से, अपने भाई से, क्या वो एक्टिविटीज इसमें कवर होंगी? मतलब एक अनमैरिड लड़की इसमें हो सकती है कवर? ओके। फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि दो लेडीज आपस में लड़ाई कर रही हैं, उन्होंने एक दूसरे को फिजिकली नोचा, क्या वो अब एक जो औरत है वो दूसरी औरत के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती है, कंप्लेन कर सकती है? तो ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे इनका पर्पस था कि कौन किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। ओके, एक ऐसा एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरी लड़ाई हुई मेरे पड़ोसी के साथ। ओके, कैसा पड़ोसी जी? जो रोज हमारे घर में विजिट करता था। ओके, उन्होंने मेरे पे पत्थर मारा, तो क्या मैं उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन कर सकती हूँ? मेरे घर के बाहर हुआ है जी, कोई सड़क पे तो नहीं हुआ, मेरे घर के बाहर उन्होंने पत्थर मारा है मेरे पड़ोसी ने, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होगा? इन सब सवालों के जवाब हमें कौन देगा? ये एक्ट, जब हम समझेंगे कि हमारा एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा और हमारा रिस्पोंडेंट कौन होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, थैंक यू। हमने इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, अब आता है हु इज प्रोटेक्टेड, मतलब किसके लिए ये एक्ट बना है। ओके, एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? कौन होगा जो उन एक्शन के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करेगा? ओके, हमने यहाँ पे मेंशन किया है जी, वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर, विडो, फीमेल रिलेटिव्स, women in relationship in the nature of marriage subject to legal requirement। तो इन सब बातों से तो हमें यही समझ आ रहा है कि सिर्फ विमेन ही हो सकती है। जी बिल्कुल, क्लियरली सेक्शन 2A में समझाया गया है, aggrieved person means a woman who is or has been in a domestic relationship with respondent and subject to any act to domestic violence by the respondent। मतलब कोई भी विमेन, इसमें कोई एज मेंशन नहीं की, सिंपल बात बोली गई है, सिर्फ फीमेल। तो यहाँ पे कंप्लेनेंट कौन होगी? कंप्लेन करने वाला एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? सिर्फ फीमेल। अभी तक ऐसा कोई केस, ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया जिन्होंने ये ऑथेंटिकली बोला हो कि ठीक है एक मेल भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट या अपनी बहन के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। एग्रीव्ड पर्सन इज फीमेल ओनली। एक मद्रास हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन मतलब रिसीव हुई थी, लेकिन बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसको अब फर्दर प्रोसीड नहीं किया गया था, जहां पे एक हस्बैंड ने कंप्लेन की थी अपनी वाइफ के अगेंस्ट कि मेरी वाइफ ने मुझे मारा है तो मुझे भी डोमेस्टिक वायलेंस में प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन इसको आगे प्रोसीड नहीं किया गया। तो अभी तक तो ठीक है, एग्रीड पर्सन कौन हो सकता है? कोई भी फीमेल जो आपके साथ किस में रह रही है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है। मतलब अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब घरेलू रिलेशनशिप। अब घरेलू रिलेशनशिप किससे बनता है? कहाँ डिफाइंड है वर्ड डोमेस्टिक रिलेशनशिप? सेक्शन 2F में, जो क्लियरली बोलता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब वो रिश्ते जो किससे बनते हैं? बाय ब्लड, बाय मैरिज, बाय अडॉप्शन और बाय नेचर ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे दो बार क्यों यूज हुआ मैरिज एंड नेचर ऑफ मैरिज? ओके, मैरिज तो क्लियर जी, हस्बैंड एंड वाइफ। बाय ब्लड
सब कुछ, आपका भाई बहन, आपके फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, सबको आपने कवर कर लिया अगर आप एक उसी घर में रह रहे हो तो। अडॉप्शन, ओके, एक आपका बच्चा है, एक बच्चा आपने अडॉप्शन से लिया है, ओके, तो उस जो अडॉप्टिव बच्चा है उसके लिए वो पूरा घर, वो भी किस में आएगा जी? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है जी। इन नेचर ऑफ मैरिज मतलब इसने किसको कवर किया है? लिव इन रिलेशनशिप्स को भी कवर किया है। वो लिव इन रिलेशनशिप जो किस तक पहुंच गए हैं, इतने लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, इन नेचर ऑफ मैरिज का रूप ले चुके हैं। इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए हमारे पास जजमेंट भी है जो हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। थिंग इज, जो मैंने आपसे पहले 2 सवाल पूछे थे कि क्या एक हस्बैंड जा सकता है कोर्ट कि मेरी वाइफ के अगेंस्ट मुझे कंप्लेंट कर रही है, मैं अगर अग्रीव्ड पर्सन हूं? इसका जवाब हमने 2A ने दे दिया, नहीं। इस एक्ट में कौन जा सकता है? सिर्फ विमेन जा सकती है, ना तो भाई जा सकता है ना हस्बैंड जा सकता है। ओके, कौन प्रोटेक्टेड है? विमेन ओनली। ओके जी। इसके साथ साथ 2A ने हमें यह भी जवाब दे दिया कि वो सिर्फ वाइफ हो ये जरूरी नहीं है, वो विमेन हो सकती है, वो मैरिड वुमेन हो ये जरूरी नहीं है। फिर मैंने किसकी बात की? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। कौन सी औरत जो किस में रही है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही, चाहे वो बाय ब्लड है, बाय मैरिज है, बाय अडॉप्शन है, या इन नेचर ऑफ मैरिज है। ठीक है जी। अब मैं बात करूंगी किसकी? रिस्पोंडेंट की, कि आप किसके अगेंस्ट को जाके ये एक्शन ले रहे हो, किसकी एक्टिविटीज के खिलाफ क्या आप अपने पड़ोसी के अगेंस्ट ले सकते हो? इसका जवाब आपको कौन देगा? वर्ड रिस्पोंडेंट। सेक्शन 2Q में मेंशन्ड है क्लियरली, रिस्पोंडेंट मीन्स जो पहले था, एनी अडल्ट मेल पर्सन who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act. क्लियर मतलब था एनी अडल्ट मेल। तो कंप्लेंट किसके अगेंस्ट हो रही थी जी? अडल्ट मेल। मतलब अगर अडल्ट कौन होगा? जो 18 साल से ऊपर है। अगर 18 साल से कम कोई भी था जिसने आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की, एक फीमेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट यहाँ पे उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। 2Q के अगेंस्ट के अकॉर्डिंग क्या था? जो 18 साल से ऊपर मेल था उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हो, जो आपके साथ क्या था? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा था। तो मतलब रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन था? मेल। लेकिन इसी का ही प्रोविजो था जो मेंशन करता था, प्रोवाइडेड दैट द एग्रीव्ड वाइफ और female living in relationship in the nature of marriage may also file a complaint against relative of husband or the male partner. वो मतलब एक ऑप्शन था, जो मैरिड औरतें हैं वो अपने हस्बैंड के साथ साथ उनके रिलेटिव के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती हैं, और वो रिलेटिव मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। वहां पे मेल ओनली का ऑप्शन नहीं रखा। अब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर किसी लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन करनी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कर सकती है, ओके, और उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी कर सकती है, मतलब मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उसके साथ रह रहे हैं उनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन अगर एक डॉटर को कंप्लेंट करनी थी अपने अंकल के अगेंस्ट, तो वो अंकल के अगेंस्ट तो कर सकती थी लेकिन आंटी के अगेंस्ट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि जो प्रोविजो था वो सिर्फ किसके लिए था? मैरिड वाइफ के लिए या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर के लिए था। लेकिन अब देखा जाए आप एक्शन सिर्फ किसके अगेंस्ट ले रहे हो? एनी अडल्ट मेल। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 का इन्फ्रिंजमेंट था। तो एक मेजर जजमेंट आया, आपने सबने सुना होगा, हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा 2016। इसमें जो वर्ड था ना अडल्ट मेल, उसको हटा दिया गया। अब क्या है? एनी पर्सन। रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है? एनी पर्सन, वेदर मेल और फीमेल। एग्रीव्ड पर्सन मतलब एक विमेन जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो किसी भी ऐसे इंसान के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है, एक्शन ले सकती है जो उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है और उसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सिंपल बात है, क्लियर हो गई। अब जो आर्टिकल 14 था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इस केस ने अडल्ट मेल को हटा दिया।
अब अब एक क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या पड़ोसी ने जो पत्थर मारा वो पॉसिबल है कि मैं उसके अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस करूं, क्योंकि मैंने बोला था कि उसने सड़क पे थोड़ी मारा, मेरे घर के बाहर ही तो मारा था। और वो पड़ोसी भी हमारा डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कवर हो रहा है क्योंकि वो रोज तो हमारे घर में आता है। बट नहीं, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कवर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बाय ब्लड, बाय एडॉप्शन, बाय मैरिज और बाय नेचर ऑफ मैरिज, इन चारों कैटेगरी में वो कहीं पे भी ऐड नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डोमेस्टिक वायलेंस के एलिमेंट्स को पूरा करती है, वो क्या है? शेयर्ड हाउस होल्ड, जो कहां पे मेंशन्ड है? 2S में। डोमेस्टिक वायलेंस कहां हुआ होना चाहिए? शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब जब एग्रीव्ड पर्सन ने और रिस्पोंडेंट एक घर में एक साथ रह रहे थे, चाहे वो घर रिस्पोंडेंट का था, एग्रीव्ड का था, या रेंट पे था, या इन नेचर ऑफ जॉइंट फैमिली हो सकता है, जो कैजुअल मीटिंग्स को कवर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की की शादी हुई, उससे पहले उसकी सिस्टर इन लॉ की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मतलब जो उसकी हस्बैंड की बहन है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो उस घर में नहीं रहती। आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया उस लड़की ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने मदर इन लॉ के अगेंस्ट और अपने सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट। तो इस सिचुएशन में उसके सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोनों कभी भी शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं आए। वो किस में आए? कैजुअल मीटिंग्स में आए। डोमेस्टिक रिलेशनशिप जरूर हो सकता है, हाँ जी, मैरिज एंड इन नेचर ऑफ मैरिज में, हाँ वो आपके रिलेटिव हैं, लेकिन साथ क्या चाहिए? शेयर्ड हाउस होल्ड। तो इसकी पूरी चेन कब कंप्लीट होती है? जब एक अग्रीव्ड पर्सन है जो कंप्लेनेंट है, और वो हमेशा कौन होगी? विमेन। किसके अगेंस्ट है जी? रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट है, जो पहले था अडल्ट मेल, पर अब जो नरोत्तम दास हरसोरा का जजमेंट है उसके बाद क्या हो गया? एनी पर्सन हो सकता है। लेकिन जो बीच की कड़ी है दैट इज डोमेस्टिक रिलेशनशिप एंड शेयर्ड हाउस। तो ना तो आप अपने पड़ोसी के अगेंस्ट ये वाली कंप्लेन कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, ना आप अपने उन रिलेटिव्स जो आपके, जिन्होंने आपके साथ टाइम नहीं बिताया। हाँ, ये हो सकता है कि एक टाइम पे 6 महीने के लिए आपकी कोई आंटी आपके साथ रहने आई, या आपके कोई अंकल आपके साथ रहने आए, उन्होंने आपके साथ अब्यूज किया, अब वो चले गए, लेकिन अब भी वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो किसी टाइम पे वो आपके साथ रहे थे। ये एक्ट क्लियरली बोलता है हु लिव्स और हैज लिव्ड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर आज भी कंटिन्यूटी में है तो हाँ ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ आपके घर में कैजुअल विजिट्स में आते हैं, वो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड का पार्ट नहीं है। तो ये 4 एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हुए होने चाहिए किसको? एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन के लिए एक्शन लेने के लिए। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आपने देख भी लिया क्लियरली कि किसको आप मानोगे, जिसमें आप ऑब्वियसली पड़ोसी को तो नहीं मान रहे, लेकिन हमने लिव इन रिलेशनशिप को इसमें काउंट किया है, तो हमने पार्टनर को भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप का पार्ट माना है। ओके, अब तक हमने ये समझ लिया बहुत अच्छे से कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, जो सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं है, हर तरीके से हमने इसको कवर करने की कोशिश किया है। किसकी प्रोटेक्शन के लिए है? फीमेल ओनली। किसके अगेंस्ट है? मेल एंड फीमेल दोनों के अगेंस्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं कि ये हो क्यों रहा है। रेमेडीज पे पहुंचने से पहले तो हम ये देखते हैं कि क्यों डोमेस्टिक वायलेंस, आज सब लोग एजुकेटेड हैं, सब ठीक है, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप मेरे से बेटर जानते हो, सबकी सराउंडिंग अलग अलग है। इमोशनल फैक्टर हो सकते हैं, बचपन से कोई इंसान अब्यूज देखता है, उसको लगता है कि नहीं मे बी बिहेवियर यही है, जो उसने बचपन से देखा उसके अंदर रह गया, जो उसको स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकता है, उसका अग्रेसिव बिहेवियर भी एक रीजन हो सकता है दूसरे इंसान को उसका अग्रेसिव बिहेवियर ही वायलेंस लग रहा हो, जो मेंटली नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। तो ये बहुत सी ऐसे रीजंस हैं जो हर कम्युनिटी, हर घर के डिफरेंट हो सकते हैं कि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी रेमेडीज की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू।
क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर हमारे पास आईपीसी थी, बीएनएस था, वो भी सेम बात ही कर रहा था, वो तो क्रुएलिटी की बात कर रहा था, उसने स्पेसिफाई कर रखा था कि अगर वाइफ को कोई भी परेशानी हुई मेंटली या फिजिकली, हस्बैंड ने मारा पीटा या इन लॉज ने मारा पीटा, तो आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कराओ, वो पकड़ के ले जाएंगे, उसमें जेल में डाल देंगे। जैसे ससुराल वालों को पता चलता था कि कंप्लेंट हो गई, वो भाग जाते थे कि पुलिस पकड़ने आ जाएगी। ओके, तो अगर वो इतना पावरफुल एलिमेंट था हमारे पास, पुलिस का डर था, कोर्ट कचहरी का डर था, तो हमें ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों हुई? पहला जवाब तो आपको मिल गया कि वहां पे सिर्फ वाइफ कवर्ड थी, यहाँ पे हमने एक फीमेल को कवर किया जो अनमैरिड लड़की को भी कवर कर रहा है, जो उस एक्शंस को भी कवर कर रहा है जो उसको उसी फैमिली में मिल रहे हैं, कोई अंकल से, कोई भाई से, कोई फादर से, किसी से भी वो एक्सप्लॉइट हो रही है किसी भी तरीके से। लेकिन आगे जाने से पहले एक बात मैं और बोलूंगी। आपके पास एक ऑफर लेटर आया, आपके फादर ने आपको मना कर दिया, आप उसी को क्या मान रहे हो कि मेरे साथ तो क्या हो गया जी, इकोनॉमिक अब्यूज हो गया। तो हम इसको कैसे जज करेंगे इकोनॉमिक अब्यूज है या नहीं? हमारी कंट्री में तो वैसे ही हर लॉ को मिसयूज काफी तरीके से किया जा रहा है, तो क्या हम इसको इकोनॉमिक अब्यूज मानेंगे? इसके लिए क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट जिसके पास एप्लीकेशन जाएगी, वो सिर्फ एक इंस्टांस को नहीं देखेगा, वो पूरे सिनेरियो को देखेगा कि इसके पीछे मना करने का रीजन क्या था। तो जो ये जज करने की कैपेसिटी है इस एक्ट में कि एक्चुअल में जो एक्शन है वो वायलेंस में कवर होता है नहीं होता, वो अल्टीमेटली किसको मिली है? मजिस्ट्रेट को मिली है, जो आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। तो सिर्फ एक इंस्टांस को लेके हम नहीं कह सकते कि हाँ मेरे साथ तो इकोनॉमिक अब्यूज हो गया। अब्यूज इज अ वाइडर टर्म जो क्या कवर करेगी? फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कैलकुलेट करके हम एक लेमैन जज कर पाएगा कि इसको हमको किस डेफिनेशन में रखना है। मतलब डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन उस डेफिनेशन को सेट कहाँ करना है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर हमारे पास आईपीसी थी तो हमने क्यों लिया? हमारे पास बहुत पावरफुल वेपन था कि हम तो जेल भेज रहे थे, लेकिन किसी को जेल भेज के मुझे पीस नहीं मिलेगा। अगर अगर अब्यूज हस्बैंड कर रहा था, उसको मैं जेल भेज रही थी, तो जब हस्बैंड वापस आएगा वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर क्यों करेगा? या उसके बाकी रिलेटिव्स मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे? नंबर वन। नंबर टू, मैं नहीं चाह रही मेरे हस्बैंड को भेजना, मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि जो मेरे राइट्स थे मुझे वो वापस दे दो। जो मेरा स्त्री धन था मुझे वो यूज करने दो, मेरे बैंक का लॉकर मुझे यूज करने दो, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है उसका डिसीजन मुझे लेने दो। तो अगर मैं मेरे हस्बैंड को जेल भी भेज दूंगी तो उसका सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारी विक्टिम थी, जो हमारा एग्रीव्ड पर्सन थी, वुमेन, उसको रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बना। तो इसका नेचर क्या हुआ? इस एक्ट में हम किसी को जेल नहीं भेज रहे, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस एक्ट का जो नेचर है वो क्या माना जा रहा है? सिविल नेचर माना जा रहा है। लेकिन इसका जो प्रोसीजरल पार्ट है वो क्रिमिनल लॉ से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो इसका नेचर है बेसिक वो सिविल है, जो हमें रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा है हमारे प्रॉब्लम की, जो किसी को पनिश नहीं कर रहा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 5 तरीके की रेमेडीज हैं जो हम इस एक्ट में सॉर्ट ले सकते हैं, सीख कर सकते हैं। नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑर्डर। आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि फ्यूचर वायलेंट एक्ट ना हो, चाहे वो फिजिकल थी, चाहे वो मेंटल थी, चाहे वो इमोशनल थी, सेक्सुअल थी, इकोनॉमिक थी, किसी भी तरीके का अब्यूज जो आपको चल रहा था, अब आप उससे रोकना चाह रहे हैं कि मुझे पति को जेल वेल कुछ नहीं भेजना, बस आप बोल दो जो ये एक्टिविटी कर रहा है, जो मेरा भाई एक्टिविटी कर रहा है, वो अब ना करे। वो मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन अब किसकी सुन लेगा? मैं भी मजिस्ट्रेट की। तो मुझे क्या चाहिए? प्रोटेक्शन ऑर्डर। जो मेरी इनसिक्योरिटी थी, अब मुझे मजिस्ट्रेट से क्या चाहिए? सिक्योरिटी। ओके। नंबर 2 इज रेजिडेंट ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर। मैं उस घर में सेफ फील नहीं कर रही थी, मुझे वहां पे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। मतलब हो सकता है आप ये डिमांड कर लो कि मुझे उसी घर में एक अलग पोर्शन दे दिया जाए जिसमें XYZ इस इंसान का इंटरप्शन नहीं हो। ऐसा हो सकता है मुझे एक फ्लोर दे दिया जाए, या जो मुझे परेशान कर रहा है उसी इंसान को उस घर से बाहर निकाल दिया जाए। या फिर
मेरा पति मेरे साथ रोज मारपीट कर रहा है, मुझे इससे ब्रेक चाहिए, मुझे साथ ही कोई और किराए का मकान लेके दे दिया जाए जिसपे मैं मेरे बच्चों के साथ कुछ टाइम के लिए रह लूंगी। फिर हो सकता है मेरे पति को मेरी इंपॉर्टेंस पता चले और वो अपना बिहेवियर सुधार ले। किस में आएगा जी? रेजिडेंस ऑर्डर में। जो मेरी मदर इन लॉ है, उनके टोंट मुझे बहुत मेंटली अपसेट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अपर फ्लोर दे दिया जाए और उसमें नीचे वाले लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। किस में आएगा? रेजिडेंस ऑर्डर। ठीक है जी। नेक्स्ट है मॉनिटरी रिलीफ। एग्जाम्पल, हस्बैंड ने कभी आके, जो वाइफ अपना बिजनेस चला रही थी, वो एक ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी, उसका सारा पार्लर तोड़ दिया, उसके शीशे तोड़ दिए, कुछ इंजरीज उसको भी हुई, कुछ वहां पे भी हुई। तो मुझे वापस मेरा जो पार्लर है वो रिकंस्ट्रक्ट करना है। जो मुझे इंजरीज हुई हैं वो भी मुझे क्या करनी पड़ेंगी? रिकवर करनी पड़ेगी। जो मेरा लॉस ऑफ अर्निंग, 3 दिन मेरे क्लाइंट अटेंड नहीं कर पाई, वो भी मेरा सब किस में आएगा? मॉनिटरी रिलीफ में आएगा। फिर आता है जी कस्टडी ऑर्डर। जब भी आप ये सारे कोई भी एप्लीकेशन लगाओगे, साथ साथ बच्चों की कस्टडी भी मांगी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। फिर है कंपनसेशन, जो आपको नुकसान हुआ है, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, उसकी भरपाई। तो ये 5 तरीके की रेमेडीज हम इस एक्ट से मांग सकते हैं, जिससे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि हम किसी को पनिश नहीं कर रहे, हम हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम अगर मान के चलो आपने केस ही फाइल कर दिया, आपने उसको जेल ही भेज दिया, 498 लगा दिया, एफआईआर करवा दी, मतलब जो अभी बीएनएस का सेक्शन 85 है वो हो गया, क्या फिर भी ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका नेचर हमने सिविल माना है और उसका नेचर हमने क्रिमिनल माना है। ये हमें रेमेडी दे रहा है और वो किसी को पनिशमेंट दे रहा है। ओके, ठीक है। ये कुछ ये जो रेमेडीज थी वो आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे, अगर मुझे 498 मतलब सेक्शन 85 और बीएनएस में जाना था, तो मुझे पता था मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। लेकिन अभी जो आप बोल रहे हो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो हमें रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मुझे किसके पास जाना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को लेके? तो मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, बॉडी हैं जो मुझे हेल्प कर सकती है, जो इस एक्ट ने ऑथोराइज किया है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले किसको रिपोर्ट कर सकते हो? पुलिस को। फिर सेकंड एक हमें इंसान दिख रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर। जो फोर्थ पॉइंट लिखा है, वन स्टॉप सेंटर, ये इस एक्ट में मेंशन नहीं है। ठीक है, मैं इन 3 के बारे में बात करूंगी पहले। अब आप, हमें सिंपल पता है कि लेमैन को, कोई भी एक औरत है चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी है, उसको ये वर्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का नहीं पता होगा, पर पुलिस का पता होगा। ठीक है, तो पुलिस के पास तो हम कोई भी केस लेके पहुंच सकते हैं, वो बता देगा कि आपके पास ये 2 ऑप्शन है मैडम, अगर आपको जेल में भिजवाना है अपने पति को तो आप क्रिमिनल केस कर दो, नहीं तो आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर वो पुलिस वाला आपको भेज देगा किसके पास? प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है? सेक्शन 8 में इस एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में 1, 2 कितने भी अपॉइंट कर सकती हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को पावर है अपॉइंट करने की प्रोटेक्शन ऑफिसर। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने भी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं। लेकिन अब इसके फंक्शंस क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर के, वो हम देखेंगे। पर आपको पता चल गया कि इसमें मेजर एक आदमी है प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है जी। अब उसकी क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वो कौन होना चाहिए? हमेशा वुमेन, क्योंकि सारा एक्ट वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए है, तो कंफर्टेबली चीजें बता सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर हमेशा वुमेन ही होगी। उनकी ड्यूटीज क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर की? सबसे पहले तो उसको रेमेडीज के बारे में बताना कि आपके पास ये 5 रेमेडीज का ऑप्शन है, आपको कौन सी रेमेडी चाहिए आप बताओ। नंबर 1। नंबर 2, वुमेन इस सिचुएशन में आई है कि उसको उस घर में जाना ही नहीं है, वो इस सिचुएशन में आई, उसको डर लग रहा है अगर वो वहां गई तो बहुत गलत हो जाएगा उसके साथ, मे बी उसको मार ही देंगे, उसको नहीं जाना, तो उसको आज कहीं और शेल्टर प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी है? प्रोटेक्शन ऑफिसर की। वो बहुत बुरी तरीके में आई, जब उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना।
उसको नहीं पता कहाँ लॉयर मिलेगा, इतने उसके पास पैसे भी नहीं है, तो क्या प्रोवाइड करना, लीगल एड। इस एक्ट में भी हालांकि मेंशन्ड है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा सकती है। तो उसको वो ऑप्शन देना कि आपके डीएलएसए का ऑफिस है, यहाँ पे आपको वकील मिल जाएगा जो आपको आगे फॉर्मेट समझा देगा। लीगल एड, शेल्टर, मेडिकल, इंफॉर्मेशन अबाउट द रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, ये करना उसकी ड्यूटी है। इसी के साथ साथ ही क्या आएगा, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। जब आप बोलोगे भी मेरे साथ तो ये हुआ है, मुझे तो एक्शन लेना है, अब वो जाके क्या तैयार करेगा, जैसे पुलिस तैयार करती थी ना चालान, वैसे वो तैयार करेगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कि एक्चुअल में हुआ क्या है, जो किसके सामने पेश की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएगी। मजिस्ट्रेट एक्शन आके तभी ले पाता है जब उसके पास इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर ने सबमिट की हो। ठीक है जी। अगर आप गूगल कर सकते हो कि आपके एरिया का प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल दूं, वहां तो जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर, उसी पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, पूरी लिस्ट निकल जाती है कि इस एरिया में ये औरत है, ये लेडी, ये ऑफिसर है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, और आगे दो दो फोन नंबर भी दिए होते हैं। पर फिर भी किसी को नहीं पता तो पुलिस स्टेशन जाओ, वो आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑप्शन दे देंगे। अगर किसी भी रीजन से प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं है तो वो आपको ये तरीका समझा देंगे कि फिर आप कहाँ चले जाओ, डीएलएसए चले जाओ, वहां से आप एडवोकेट की हेल्प से रेमेडी ले सकते हो। अब रेमेडी का तरीका क्या है, रेमेडी पे पहुंचने से पहले मैं बात करूंगी सर्विस प्रोवाइडर। अब ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, मेडिकल, लीगल या काउंसलिंग सेशंस। ये वो लोग हैं जिनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज ए सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन कभी भी ये सोलो इंडिविजुअल नहीं हो सकते। तो ये कौन होंगे, ये हमेशा कोई ना कोई एसोसिएशन ही होगी जो रजिस्टर्ड होगी, या तो कंपनीज एक्ट के अंडर या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंडर। और इन सारे सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट रखता है अपने पास प्रोटेक्शन ऑफिसर। जो भी वेमेन सर्विस प्रोवाइडर हैं वेमेन वेलफेयर के लिए, उनकी सबकी लिस्ट होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। तो जब उनके पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट आएगा जिसको मेडिकल या लीगल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो वो इन सर्विस प्रोवाइडर से उनका कनेक्शन बिठा सकता है। ठीक है जी। ऐसी एक डेफिनेशन किसकी है, शेल्टर होम्स की भी है। शेल्टर होम्स मतलब वो शेल्टर होम्स जो किसने नोटिफाई किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे रन बसेरा आप सबको पता है। ठीक है जी। तो मुद्दे की बात यह हुई कि इस एक्ट ने ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको उस घर में वापस नहीं जाना तो आपको मेडिकल, लीगल, हर तरीके की हेल्प मिल सकती है। और रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर। आप इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, शेल्टर होम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर कोई आया है तो उसको रुकवाना है, जो भी उसको फर्स्ट एड देनी है, फूड देना है, वो सब देखना है। ठीक है। अब मैं बात करूंगी रेमेडी लेने का तरीका क्या है। सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें जा रही है एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, वेमेन खुद भी कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कर सकता है, और वेमेन के बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। मतलब पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ अग्रीव्ड पर्सन ऑल्सो कैन फाइल अ कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे कंप्लेंट वर्ड कहना सूटेबल नहीं है जो मैं अब तक यूज कर रही हूँ। यहाँ पे अब उस कंप्लेंट वर्ड को हम शिफ्ट कर देंगे किसमें, एप्लीकेशन। अब आपको लगेगा कि हम अब सिंपल भाषा में हमें लग रहा है कि हम एक पेज पे एप्लीकेशन दे देंगे, नहीं, इसका एक फिक्स फॉर्मेट है जो एडवोकेट आपको दे देगा। लेकिन सेक्शन 12 का फॉर्मेट है किसका, डीवी एक्ट का, जिसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि मुझे ये वाली रेमेडी चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे मजिस्ट्रेट आपको कैसे दे देगा, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, आपको मॉनिटरी ऑर्डर चाहिए, या आपको रेजिडेंस ऑर्डर चाहिए, कस्टडी ऑर्डर्स चाहिए, जो भी आपके आपकी रिक्वायरमेंट है जो आप चाह रहे हो, वो आप उस एप्लीकेशन में लिख के सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट को दे दोगे। कौन से मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जैसी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास गई, अब उसको नेक्स्ट पार्टी को नोटिस देना होगा, उनको बुला लेंगे और 3 दिन के अंदर अंदर उसको नेक्स्ट मतलब प्रोसीडिंग जो नेक्स्ट सेशन है वो रखना होगा। अगर मजिस्ट्रेट को किसी भी सिचुएशन पे लगता है कि यहाँ काउंसलिंग से चीजें सेट हो सकती हैं, तो वो दोनों पार्टी को काउंसलिंग में भी भेज सकता है। लेकिन सेक्शन 12 की जब भी ट्रायल, जब भी होगी प्रोसीडिंग्स, वो इन कैमरा होगी, कभी भी पब्लिकली प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती।
ठीक है जी। अब जैसे जो आपने मांगा गया है उसी अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर प्रोवाइड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर है तो प्रोटेक्शन ऑर्डर, मतलब अगर आपने मांगा था कि मुझे इकोनॉमिकली अब्यूज किया जा रहा है, मुझे एम्प्लॉयमेंट में नहीं भेजा जा रहा, मुझे मेरा पैसा यूज करने नहीं दिया जा रहा, तो कोर्ट उस अकॉर्डिंग जो भी आपकी रेमेडी है वो ऑर्डर कर देगा। अब बात आती है कि कोर्ट ने तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो इंसान नहीं मान रहा, वो बोल रहा है जो तो तुझे करना है कर। फिर तो वही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है उसके अगेंस्ट, और उसको पनिशमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर, और पेनल्टी फाइन लग सकता है अप टू 20,000 रुपीज। तो कम से कम ये डर तो है कि अगर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको पेनल्टी मिलेगी, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, जो 1 साल तक जाना हो सकता है। तो इस एक्ट ने आपको क्या दे दिया, एक रास्ता दे दिया, जिसमें जो भी आपको वायलेंस हो रही थी आपके अगेंस्ट, चाहे वो फिजिकल थी, इमोशनल थी, सेक्सुअल थी, उसको रोकने का एक आपके पास तरीका बन गया सेक्शन 12। आपको नहीं समझ आ रहा फॉर्मेट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाओ, सारी प्रॉब्लम उसको बता दो, आगे काम करना उसकी ड्यूटी है, वो आपकी हेल्प करेगा। वो भी समझ नहीं आ रहा, देन पुलिस, तो पुलिस आपको रास्ता बता दे कि या तो मजिस्ट्रेट के पास जाने का या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाने का। लेकिन मजिस्ट्रेट तब तक आगे काम नहीं करता जब तक उसके पास डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो कौन देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सिविल नेचर है, इसके साथ साथ आप चाहो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं। अब जैसे आप सेक्शन 85 की हमने बात कर ली है, डाउरी डेथ, लेकिन डेथ हो जाए तो फिर ये रेमेडीज काम की नहीं है। ये कब काम की हैं, जब अभी चल रहा है, अब्यूज हो रहा है, उसके साथ साथ आ सकती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पूरे उसका कंक्लूजन है जो हमने अब तक बात की है, कि domestic violence include physical, emotional, sexual, verbal, and economic abuse. And now it covers digital abuse also, if the person who is under domestic relationship is causing such abuse, and within shared household. ठीक है जी, नेक्स्ट। अब हमने बात करनी थी जो जुडिशरी ने जो इस एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें हेल्प की है, इस केस के बारे में हमने अभी बात की थी, हिरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। इसमें क्लियरली वर्ड हटा दिया गया, कौन सा, अडल्ट मेल। मतलब अब अगर कोई लड़का है जो 17 या 18 साल, 17 साल का, 16 साल का है, वो उसके अगेंस्ट भी आप ये एक्शन ले सकते हो, उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम उसको जेल नहीं भेज रहे, उसको सिर्फ क्या आएगी, इंस्ट्रक्शन आएगी कि आपको ऐसा नहीं करना, और वो भी उसके एज के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी रखते हुए। तो अडल्ट मेल वर्ड हटा दिया गया है, तो इसका जो एरिया था वो काफी ब्रॉड हो गया है, मतलब मेल फीमेल दोनों के अगेंस्ट सेक्शन 12 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो आप, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर है जी केस इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा। इसमें क्लियरली बोला गया कि लिव इन रिलेशनशिप को भी माना जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस के अब्यूज के केस में। इन नेचर ऑफ मैरिज में इसने बोला है कि क्या, कि इट कवर्स लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज एप्लीकेबल बियॉन्ड फॉर्मल मैरिजेस ऑल्सो। इन नेचर लिव इन रिलेशनशिप को इसने इन नेचर ऑफ मैरिज क्लियरली कंसीडर करके इंटरप्रेट किया है। अब लतिका कुमारी का केस यहाँ पे क्यों मेंशन्ड है, अगर आपके पास केस आ गया है कि किसी ने बोला मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, मुझे हेल्प लेना है, और पुलिस वाले को समझ आ रहा है कि यहाँ पे केस डोमेस्टिक वायलेंस का है, तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है, किसका, एफआईआर लिख सकता है। अब बहुत ज्यादा मारपीट हुई है, सिचुएशन ऐसी है कि क्या उसके सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इतनी चोटें हैं, फिर भी क्या पुलिस आंखें बंद कर लेगी कि नहीं, हमसे तो सिर्फ ये पूछा गया था प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ है? नहीं, आपको एफआईआर लिखनी है। नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब
चैलेंजेस क्या हैं? अगर हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो चैलेंजेस क्या है? ठीक है, सबसे पहले है सोशल स्टिग्मा। सब डरते हैं कि नहीं पढ़ना कोर्ट कचहरी के केस में। क्यों? बहुत लंबे चलते हैं, बहुत पैसा जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है, पता नहीं कब सुनवाई होगी, तो ठीक है हम इसको आगे नहीं बताते। लेकिन इस एक्ट ने हमें बहुत सिंपल तरीका दे दिया। क्यों? नंबर वन, स्पीडी है। हाँ जी, स्पीडी है। थर्ड डे मजिस्ट्रेट को अपोजिट पार्टी को बुलाना है और विद इन 60 डेज इसको डिस्पोज करना है मैटर को। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट हो सकती है? काउंसलिंग से सॉर्ट हो सकती है। तो पीरियड अपने आप शॉर्ट हो गया। अब बात आती है इकोनॉमिक की, कि पैसा नहीं, आप किसके में फ्री लीगल एड की हेल्प ले सकते हो, तो वो आपका वैसे सिस्टम सेट हो सकता है। अच्छा, हेल्प, प्रोटेक्शन ऑफिसर आपकी हेल्प के लिए है, चाहे वो आपको मेडिकल है, काउंसलिंग चाहिए, लीगल चाहिए, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज देगा। उससे बड़ी बात कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडिक्वेट रेमेडीज दी थी। अब आपको चूज करनी है बस कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। तो घर टूटने की बजाय घर बन जाएगा। अगर हम हस्बैंड, अगर हमने 498 सिर्फ अकेला यूज किया तो जरूरी नहीं है कि वापस आके चीजें सेम रहे और घर बच जाए। पर इसमें हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्टेड आदमी जो रास्ते से भटक गया था वो अब वापस आ जाए। तो ये एक्ट वुमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और घर को बनाए रखने के लिए ड्राफ्ट किया गया, जिसमें एक बड़े वर्जन के साथ सब चीजों को सोचते हुए सिंपल तरीके से अथॉरिटीज रखी, पुलिस, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो आपकी हेल्प कर सके। और उससे बड़ी बात कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं माना तो भी इसी एक्ट ने बोल दिया कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले लेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी, ताकि एक डर भी बना रहे। तो हम कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने कोशिश की है डोमेस्टिक वायलेंस का एक बड़ा वर्जन रखते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। थैंक यू। अब कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो हम बात कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am, for such an insightful and thought-provoking session. Today's discussion reminds us that addressing domestic violence is not a legal responsibility, but a shared social responsibility. As the saying goes, awareness creates confidence, knowledge empowers action, and today they build a safer community. With that, we now open the floor for an interactive Q&A session. If you have any question, please type them in the chat box. If you would like to ask the questions yourself, kindly use the raise hand feature, and we will invite participants one by one to ask the questions. Yeah, Avni, please go ahead. Hello. Hello, ma'am. This is Anvi. I'm Yes. actually a practicing advocate in Delhi, and मैं आपका काफी insightful session था, and I could gather a lot of information that we did study in law school at one point. लेकिन जब practically when we start doing these, I've not seen a single case in domestic violence. जिसमें these orders have been passed within the set deadlines. मैं उस बात से एग्री करती हूँ। इस सेशन से पहले मैंने बात की मेरी एक फ्रेंड से जो अभी सीजीएम है। मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि ये एक्ट मैंने पढ़ा लिया, प्लीज मुझे प्रैक्टिकली बता दो। तो उन्होंने दो ही बातें बताई। नंबर वन, हम तब तक कोई एक्शन नहीं लेते जब तक हमारे पास डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आती, और वो कब आएगी? जब उस एरिया का प्रोटेक्शन ऑफिसर एक्टिव है। नंबर वन। नंबर टू, वर्कलोड इतना ज्यादा है, पेंडेंसी इतनी ज्यादा है, प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा है कि जो जो डेडलाइन इवन तो जो सीआरपीसी में भी मेंशन्ड है वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश ये रहती है कि उसको हम काउंसलिंग में भेज के सॉर्ट करवा दें। तो ये मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट वेरी करता है कि वो उस एप्लीकेशन को किस तरीके से एंटरटेन कर सकता है। Right, ma'am. Also, I've seen in many cases जो हम we've taken it to counseling, जैसे mediation में भेजा गया है. But many men are very stubborn in abiding by whatever has been um, offered by the mediator कि आप इस तरह से इसको resolve कर सकते हैं, because most of the times एक बार केस चला जाए कोर्ट में तो it's very difficult कि reconcile होगा कभी भी जी जी couple जी के बीच में.
जी बट वाइफ को ध्यान में रख के ऑब्वियसली मीडिएटर ट्राइज कि किसी तरह से उनके फेवर में कुछ चला जाए, बट फेवर में बहुत बार होती नहीं है चीजें। जी जी तो अग्री। बेसिकली क्या हो जाता है कि हस्बैंड अपने अड़ जाते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे, ही बिकम स्टबर्न, एंड मीडिएटर वाइफ से ही फिर एक्सपेक्ट करती है दैट यू एग्री टू हिम, क्योंकि खत्म करने का करो चाहे जी कम में हो जाए किसी तरह। जी तो तो मुझे लगता है कि दीज लॉज, ऑब्वियसली आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लॉ इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द रीजन आई परस्यूड। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो आई डोंट फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। मतलब क्योंकि वाइफ मैंने ज्यादातर देखा है हमेशा कर्ब करते हुए चीजों को, एंड शी इज बिन इन द रिसीविंग एंड at a very little price she has to give up divorce. The husband even goes on having more relationships, openly has relationships, gets married again, but आई एग्री। बट इस सिचुएशन में ऑप्शन है, आप वापस आ सकते हो। आप अपने जो आपने एप्लीकेशन दी है, अगर वह काउंसलिंग सेशन में सेट नहीं हुआ तो आप उससे कोई दोबारा डिमांड कर सकते हो कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो मुझे प्लीज आप रेंटल अपार्टमेंट प्रोवाइड कर दो। तो फिर वो मजिस्ट्रेट देखेगा कि अगर ठीक है सेट नहीं हो पाया, ओके, तो जो ये मांग रही है अगर वो रेलेवेंट है उस सिचुएशन में तो उनको प्रोवाइड किया जाए। यस मैम, लेकिन एक मैं आपको रीसेंट केस का ना एक रेफरेंस देती हूँ। द्वारका कोर्ट दिल्ली में है, ये मैटर चल रहा है, काफी साल जी हो गए, 12 years से चल रहा है। इवन द मैजिस्ट्रेट, व्हाट हैपेंड, अभी रिसेंटली उन्होंने डिवोर्स ग्रांट कर दिया, जबकि कोई प्रूफ भी नहीं था दैट द वाइफ वाज एट फॉल्ट, and husband had actually filed for the divorce on the grounds that she had deserted him, but it was the other way around. So I completely understand जब आप theoretically all the students are being taught, but मेरे जैसे अब 5-6 years हो गए I think practice जी करते हुए, which जी is a substantial amount. I see magistrates also are not at a very how to say modern outlook. They also feel कि women बस कर दो किसी तरह, उनको अपना backlog भी खत्म करना है many times. They're not abiding by things, and sometimes I've even heard they do there are malpractices going on in the court. I hope you understand what I'm referring to. सिंपल सी है। नंबर वन, जब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की तो हम हर एज ग्रुप की डिफरेंट लोगों की बात कर रहे हैं जिनका सबका नजरिया अलग हो सकता है। ओके, नंबर वन। नंबर टू, अपील का राइट हमेशा हमारे पास है। एंड नंबर थ्री, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, पार्टीज ट्रायल पे नहीं होती। हमेशा कौन ट्रायल पे? जज, क्योंकि पार्टीज को तो पता है सच एंड झूठ क्या है, वो तो मैनिपुलेट कर रही है। ढूंढना किसको है? जज को है। तो अब किसकी क्या समझ बैठ रही है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्ट का मोटिव क्या था? आपको रेमेडी प्रोवाइड करना, जो इस एक्ट से पहले नहीं थी। प्रोटेक्शन ऑफिसर का नाम नहीं था, सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं था। चलो अब लॉ में कहीं तो आया। अगर कोई औरत को रात को मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया तो कहीं ना कहीं तो उसके पास रास्ता है कि हाँ उसको शेल्टर होम्स में जगह मिल जाएगी, उसको मेडिकल हेल्प मिल जाएगी। तो इस एक्ट का मोटिव बस उस जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना है कि उसको एक बार थोड़ी सी रेमेडी मिल जाए। अब प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या हो रहा है वो आप मेरे से बेटर जानते हो। Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, Anvi. Ma'am, ma'am, I हाँ have a doubt, ma'am. Madam, I जी have a doubt. जी One minute जी only. जी Sure. There is a DVC in a court in Hyderabad, Telangana, ma'am. Since 2019, it is being till date it is continuing, madam. Whenever ओके the judge orders for filing any evidence or affidavit or something like that, immediately she will not appear before the honorable court, madam. Till now, she is taking several adjournments. She took 2 years for filing her chief examination affidavit in a DVC case, ma'am. But still, the judges are not at all compelling her to or ordering her to file before the court, madam. Since इवन तो 19, he is wandering around the courts like this, madam, without any mercy, also, madam. आई कैन अंडरस्टैंड, बट इस एक्ट में इंटरिम ऑर्डर पास करने का भी ऑप्शन है। अगर अपोजिट पार्टी कॉपरेट नहीं कर रही, टाइमली नहीं आ रही, तो आप इंटरिम ऑर्डर हो सकता है, उसकी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। Can I am on behalf of the respondent, I am talking, madam.
जी That जी जी that lady is not coming. She filed the case and she doesn't appear before the honorable court for filing affidavit. Since 19, she took so many years, and again after the serious order, again she took 2 years for filing affidavit, and still she is dragging on the matter. And she is telling that I am a housewife, but she is paying income tax regularly, madam. तो फिर केस चल कैसे रहा है? अगर वो खुद ही नहीं आ रही तो फिर केस कैसे चल रहा है? Madam, can you tell in English, madam? I don't understand Hindi. Then how the case is processing if she Yes, is not madam. coming? Yes, madam. She is not coming. Every time the advocates are coming and taking adjournments, madam. She is Then my why boy is my sister's son, madam. court is not deciding ex parte? Yeah, that is what, madam. Is there any particular stipulated period for that, or as since 19 it is continuing again and again? So many adjournments till now, nobody is taking care. To whom should I complain, madam? There is option of ex parte also in this No, act. no. Yeah, the advocate appears on her behalf and takes Okay. adjournment, madam. That's all. She takes adjournment. Juniors come and take the adjournment. 19, since 2019. Then file an application for disposal of case. Okay. Before the district judge, ma'am. Firstly, file in front of that magistrate only. Particular court, please. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. There are two questions in the chat box. Shall I read that? Yes, please. Atulya is asking that, as mentioned, that the aggrieved is usually female. Does this also include queer individuals? It is question of interpretation only. Maybe within time, judiciary will cover all category, but particularly now they have specifically mentioned female. All right, ma'am. And there is another question that is, ma'am, explain the relationship between the Domestic Violence Act and Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. BNS is for providing penalty, punishment for cruelty. But this act is for providing remedy, but action is same. If husband is causing domestic violence, for against same action, you can file application under section 12 of DV Act, and you can file FIR under section 85 of BNS. For same action, you have two remedies. One, to punish your husband, and second, to get the remedy for problem you are facing. Sure, ma'am. Anybody else has any question? Kindly raise your hand or type in the chat box. I would consider that nobody has any questions. So, ma'am, as we have come to the end of the Q&A, I would like to ask one question on behalf of the team. Yes, so, please. in your experience, what is the one misconception about domestic violence that you wish every individual would unlearn? Apart from that, it's mostly physical abuse and not anything else. Apart from that, one misconception which people should unlearn. Economic abuse is also part of abuse. If someone is not allowed, हमारे नॉर्मल सोसाइटी में हम हमारे सारे डिसीजन हमारे फादर हमारे हस्बैंड्स को देते हैं कि आप मेरी प्रॉपर्टी का ठीक है, इसका देख लो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ओके. लेकिन जब एक लिमिट आ जाए कि आपके डिसीजन आपको ना लेने दिए जाएं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक. That is truly something which I was looking for in an answer. So thank you so much, ma'am. There is one more question. I think that this is the last question which we'll be having for today's session. Aryan is asking, ma'am, DV Act का आजकल कुछ लोग misuse भी कर रहे हैं, like some wife to their husband. Husband कैसे से बच सकते हैं? जब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पेश की जाएगी तब डिपेंड करेगा उस सिचुएशन में क्या चीज पेश किया जाएगा. तो जब भी कोई जज या कोई मजिस्ट्रेट कुछ देगा तो उसको कोई ना कोई एविडेंस तो चाहिए. तो अगर मिसयूज हो रहा है तो वहां पे चीजें हो सकती हैं कि ठीक है आपके फेवर में आ जाएं, जो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं वो ना दिए जाएं. तो जो एविडेंस का पार्ट है वो तो वहां पे भी सेम रहेगा. बट हाँ, जो आप मिसयूज की बात कर रहे हो तो वो तो जो हम आज की बात में जो डाइवोर्स का लॉ है उसका भी मिसयूज तो हो रहा है.
बिल्कुल हो रहा है। कहीं पे कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा तो आप क्या डाल दो, क्वालिटी डाल दो। मिसयूज तो हर जगह है। तो ये तो वाइजली वुमेन को सोचना पड़ेगा कि जो उसके डिफेंस के लिए चीजें बनी है, उसकी लाइफ को इजी करने के लिए बनी है, वो इसको इस तरीके से यूज ना करें कि किसी और की लाइफ में भी ट्रबल आए। सूख जाएंगे, गर्मी है, कुछ नहीं होता इधर, दो पानी गिलास, दो पानी। Kindly mute yourself. ज्यादा कितने हैं? Is there any other question from anybody? Or shall we wrap this up? I would take it as a no. So, as we come to the close of today's session, I would like to express my heartfelt gratitude to Ma'am for sharing her valuable time, knowledge, and experiences with us. Ma'am, your session has helped us better understand the legal rights available and the remedies provided under the law, and also the importance of creating an environment where people feel safe to seek help. Your insights have encouraged all of us to become more aware, more compassionate, and more responsible members of the society. I would like to sincerely thank all of our participants for joining today's session and making it engaging through your enthusiastic participation. Before we conclude, I would like to leave everyone with a very beautiful thought, that is, do the best you can until you know better. Then when you know the better, do better. I hope today's session has helped all of us know better so that together we can do better for ourselves and the society. Before you leave, please remember to complete the post-assessment form by scanning the QR code displayed over the screen. Participation certificate will be issued only after the successful submission of the feedback form. We also encourage you to become a part of this project. Stay informed, stay aware, and stay empowered. Thank you so much, ma'am, and thank you everyone for joining today's Thank you session. so much. Thank you. Thank you. Vishwa, are you recording this meeting? No, sir. Divya is recording the meeting. Okay, Divya, please stop the recordings, and Vishwa, if possible, please upload this video today itself. Okay. Yeah, sir. Like I will reach my home at 9, so I will upload it. And I think so. We did not announce about volunteer wala, sir. Okay. Go ahead if there is anything. Otherwise, it's not necessary that. Okay. Sir, please. Excuse me. Ma'am, please show the QR code once again. It's not scanned by me. Whoever is presenting, please show the QR code again. सर इसके पहले भी मतलब आपने जो वेबिनार कराए थे उसमें मैंने एक क्यूआर कोड स्कैन किया था, बट मेरे पास अभी तो कोई सर्टिफिकेट नहीं आया सर। जनरली सर्टिफिकेट जो है वो 10 days के अंदर आते हैं, तो आई डोंट नो कि तुमने कब किया था। आई डोंट हैव मतलब रिकॉर्ड्स। सो अगर ऐसा कुछ भी है कि 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो प्लीज सेंड अस एन ईमेल। विल सी व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड विल डेफिनेटली सेंड इट। ओके सर प्लीज आज का ओके दे दीजिए QR ओके code। सर ओके आज का स्कैन नहीं हुआ सर, वो एक बार शो कर दीजिए। जस्ट होल्ड ऑन।